students, welcome you all in the rapid revision course of Business Economics. Part Economics. It means that it uses of the economic analysis to make business decision involving the best use of organization resources. It also referred as managerial economics or applied economics. It means it apply the tools of microeconomics to the business. It concerned with decision making of economic nature. This definition given by the MC Nair and Merriam. Business economics is a systematic body of knowledge in which we apply all the tools of economics to the businesses. It integrates mathematics, statistics, econometrics, and economic theory into the businesses. The nature of business economics. Business economics is science because it is a systematic body of knowledge. Business economics is an art because it involves the creativity of individual. It is prescriptive rather than descriptive. Because it is prescriptive, as you all know in the previous lecture, that if the economics is prescriptive, that means it is a normative economics. And if it is a normative economics, it should have a pragmatic approach, which means the positive approach. It is interdisciplinary, as you all know. It integrates mathematics, statistics, econometrics, and economic theory into the businesses. And it consider only the private enterprises economic viewpoint. It is micro based as well as macro based. It consider individual demand as well as industry demand also. That's why it is micro plus macro. Next term is objectives of business firm. Traditionally, the main objective of business firm is the maximization of profit. Means अगर business का कोई objective है तो वो at last ये है कि उसने profit को कमाना है. Traditionally, economy को ही profit कहा जाता था. But there are 5 modern objectives that are maximization. हमें बढ़ावा देना है किसको? Sales revenue को, फर्म्स की ग्रोथ को, मैनेजर की यूटिलिटी को, सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स को, और हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और मार्केट का शेयर में का भी ऑब्जेक्टिव है. सेल्स रेवेन्यू हमें प्रोफेसर बाउमल ने दिया था. फर्म्स के ग्रोथ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव हमें मैरिस ने दिया था. मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरल यूटिलिटी हमें विलियमसन ने दी थी. और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फाइसिंग बिहेवियर हमें सरिट एंड मार्च ने दिया था. मैक्सिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड मार्केट शेयर गोल हमें रॉस के. Next is 6 profit theories which was given by various different authors. Profit means positive gain after subtracting all the expenses or cost. First theory is all about the rent theory. Rent means the difference between most and the least fertile land. This theory is focused on the maximization of rent. This theory was given by the Walker. Second theory is dynamic theory, which was given by the Clark. He said that profit does not arise in static economy. Profit always arise in dynamic economy. Profit हमेशा एक जैसे नहीं रहते. Profit हमेशा बदलते रहते हैं because हमारी economy dynamic economy है. थर्ड हमें थ्योरी हाउले ने दी थी जो कि है रिस्क थ्योरी. वो कहता है दैट प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क. मीन्स जितना हम रिस्क लेंगे उतना हमें प्रॉफिट होगा. हायर द रिस्क एंड हायर द प्रॉफिट. Another theory was given by Knight, that is the uncertainty bearing theory. वो कहते हैं profit is reward of uncertainty on calculable और incalculable risk. Calculable और incalculable risk, जो risk हमें पहले से ही पता होता है और जो रिस्क हमें पहले से पता नहीं होता है. मान लीजिए आप एक रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर आपको ये निश्चित है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ स्क्रैचेस जरूर आएंगे. वो है कैलकुलेबल रिस्क. बट आपका इतना एक्सीडेंट हो जाता है इतना भयंकर वाला कि आपकी गाड़ी पहचान में ही नहीं आ रही है, वो आपकी है इनकैलकुलेबल रिस्क.
नेक्स्ट थ्योरी इज स्कम्प्टर। स्कम्प्टर ने हमें इनोवेशन थ्योरी दी थी और उसने ये कहा था कि प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ इनोवेशन। जितना हम इनोवेशन करेंगे अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, प्रोडक्ट में, तो हमारा प्रॉफिट भी उतना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज तौसिग ने हमें वेज थ्योरी दी थी, इसे तौसिग वेज थ्योरी कहते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट इज द वेज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो भी एक एंटरप्रेन्योर कमाता है उसी को ही प्रॉफिट कह देते हैं। एक सबसे लास्ट टॉपिक आता है बेटे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अदर नेम्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस। इसका मीनिंग है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मीनिंग है कि एक ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको ग्राफ पे बनाया जा सकता है, ऐसे कॉम्बिनेशन को, कौन से कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे पास सेम रिसोर्सेज और सेम टेक्नोलॉजी से। मींस हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दिए हुए हैं और उससे हमने दो गुड्स को प्रोड्यूस करना है, उसके कॉम्बिनेशन को ही हम रिप्रेजेंट जब करेंगे ग्राफ पे, तो वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहलाएगा। इसके एजम्पशंस हैं कि इसमें गुड्स हैं दो ही, रिसोर्सेज है हमारे फिक्स्ड और टेक्नोलॉजी हमारी है फिक्स्ड, और हमने उसी रिसोर्सेज का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है और वो रिसोर्सेज इक्वली इफिशिएंट है। इट मींस अगर हमारे पास ए है और बी है, तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो ए को बनाने में भी उतने सक्षम है और बी को बनाने में भी उतने सक्षम हैं। Next is properties. Properties means concave to the origin. Production possibility frontier concave है, downward sloping है, MRT उसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इफिशिएंट है, हम अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और MOC भी हमारी इंक्रीज है। अगर हम कनकेव टू द ओरिजिन समझेंगे तो बेटे ये वाली जो हमारी रेखा होती है ये कनकेव होती है, ये वाली हमारी कन्वेक्स होती है, ये हमारी वर्टिकल होती है और ये हमारी हॉरिजेंटल होती है। इसने कहा कि कनकेव है हमारी टू द ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। यहाँ से मेरी ओरिजिन से लेके ये कनकेव है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारी कनकेव है टर्म। तो यानी कि मेरी जो स्लोप होएगी वो क्या होएगी, नीचे की तरफ गिर रही होगी, तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। MRT को आप समझेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है MOC में, M मीन्स opportunity cost और M means margin. Opportunity cost means value of next best alternative foregone, कि आप कितना नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को भुला रहे हैं, फोरगोन कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स, एक आप ही में से कोई एक बच्चा है जो बैंक में नौकरी करता है और वो वहां से 40,000 पर मंथ कमाता है। 40,000 कमाते हुए उसके पास एक ऑफर आता है कि आप हमारे FMCG में आ जाइए और यहाँ पर हम आपको 45 देंगे, बट दैट वाज इज नियर फार टू हिज सिटी। सो वो डिसाइड करता है कि मैं 45,000 में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर स्टे करूंगा और मैं अपने बैंक की ही नौकरी को आके चलाऊंगा 40,000 में। तो जो उसने त्याग दिया वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे, एक सेकेंड, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नंबर ऑफ कमोडिटी होती है जो हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। सेक्रीफाइस कर देते हैं किसके लिए? कुछ पाने के लिए, टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये एक रेशो है। जब भी आपको मार्जिनल रेट कहीं पर भी ये वर्ड दिखे, इट मींस इट इज अ रेशो। रेशो व्हाट? नंबर ऑफ सेक्रीफाइस यूनिट, कितना हमने सेक्रीफाइस किया और कितना हमें उससे गेन हुआ, वो हमने डिनोमिनेटर में रखना और सेक्रीफाइस हमने न्यूमरेटर में रखना।
तो डेल्टा एस और डेल्टा जी इसकी एमआरटी होता है। एमआरटी मीन कितना हमने सेक्रीफाइस किया और कितनी हमें गेन हुआ, उसका चेंज की रेशियो को ही हम एमआरटी कहते हैं। एमआरटी इंक्रीजेस होनी चाहिए, एमआरटी बढ़नी चाहिए, एमओसी बढ़नी चाहिए, तब हमारा पीपीएफ क्या होगा, कनकेव होगा। कनकेव मीन्स ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम समझ लेते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आई हमारे इंडिया में कि जहां पर या तो हमें गन्स बनाने थे या हमें बटर बनाने थे। या हमें क्वांटिटी नहीं मेंशन की है, मैं यहाँ क्वांटिटी मेंशन कर देती हूँ। ये एक क्वांटिटी में है और ये हमारी पैकेट्स में है, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं 10 गन बनाती हूँ तो मैं 0 बटर बना पाती हूँ, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने क्या सेक्रीफाइस किया, कुछ भी नहीं, 0। तो जब सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो फिर मेरी एमआरटी कैसे हो सकती है, 0। जब हम ग्राफ पे बनाने लगेंगे, ये मेरा ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 होगा तो ये क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो ये 10 है और ये 0 है, तो ये ए। फिर मैंने एक का सेक्रीफाइस किया, एक का सेक्रीफाइस करने पर मेरे को एक का ही गेन हुआ, तो हमारी एमओसी क्या होगी, 1, और एमआरटी क्या होगी, 1 गन रेशो 1 भी। अब एमआरटी क्या है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा जी, और एमओसी क्या है, डेल्टा एस ओनली, ठीक है। इसमें फर्क है बेटे, ठीक है, आप वो मत कर देना, ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा एस अपॉन में जी है। फिर मैंने 9 से मैं 6 की तरफ सेक्रीफाइस करके आई और 1 से मैंने 1 ही यूनिट बढ़ाई। 6 से मैं 3 के सेक्रीफाइस करके आई और 2 से मैंने 1 यूनिट बढ़ाई। फिर 3 से मैंने बिल्कुल ही 0 कर दिया और बटर में मैंने 1 इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से जब मैं ये प्लॉट करूंगी अपने एक ग्राफ में, तो मेरी जो कर्व आएगी वो कनकेव आएगी और डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगी, जिसमें आप ये देख रहे होगे कि एमआरटी तो मेरा इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4, तो ये तो हमारा इंक्रीज हो रहा है। एमओसी क्या इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4, यस, एमओसी भी मेरा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स दैट इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, thank you so much. Like, share and subscribe. I am your mentor, I am always with you.